Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are again going to discuss here with ICSE class 9th Maths. Book is ML Agarwal. Right, you have seen the first part of this exercise, compound interest. Now we are going to start here with part second of this exercise, that is exercise 2.1. This you have seen in the earlier video, all you have done in the earlier video. Now up to question 3, right? Now we are going to start here with question number 4. For that we have to make some space here. So question number 4. What is question number 4? Ramesh invests rupees 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Find the sum due to Ramesh at the end of the first year. Second is the interest he earns for the second year. And the third one is the total amount due to him at the end of 3 years. So before solving this question, please make a picture of this question in your mind. What does the what is the need of the question? So what he has given here is P, principal for 3 years is time, and this is R, rate of interest. The sum due to Ramesh at the end of the year, of the first year, we have to find out. So here is solution to question 4. So what we are given with? P equal to rupees 12,800. Time is again your 3 years, and rate is 10% per annum. Per annum, no semi-annually, no quarterly, no 9 months. So it is simple, per annually, per annum, right? The sum due to Ramesh at the end of the first year, that is, this sum is what? The amount for the first year. Therefore sum due to Ramesh at the end of the first year would be equal to amount in the last of first year, या इन द एंड भी बोल सकते हैं इसको. सो दैट वुड बी इक्वल टू AP1 plus R upon 100 raised to power t. So 12,800, 1 plus R is 10 upon 100 raised to power t. Sorry, t is first year, so here we will take first year. So this would become 12,800 into 11 upon 10, right? So 1100, 11 8 ja 88, 11 2 ja 22 plus 8 90. This 12,000 right? So 11 2 ja 22 plus 8 30 0 3 11 1 ja 11 plus 3 14. So this is
part first solved here, right? The sum due to Ramesh at the end of the first year would be rupees 14,080. Now I am going to solve here part second. What is part second? The interest he earns for the second year. So from here, this is the amount in the last of the first year, so this would be the principal for the first year. Therefore the second year, P for second year would be rupees 14,080. Therefore compound interest would be P, ये मैंने फार्मूला आपको पहले वीडियो में बताया था इस सीरीज़ के, R/100 raised to power t minus 1. So P is 14, 1 plus rate is 10. The year is second. So first year we have solved here, so year would remain 1 here. So 14,080 so this would become 10 11 upon 10 11 10 plus 1 11 upon 10 minus 1. So this would become 1480. 10 would be the LCM, 11 minus 10, right? So this would become 1480 1 upon into 1 upon 10. So CI for second year would be rupees 1408. So question is solved. Part second is solved, right students? The total amount due to him at the end of 3 years. Total amount due to him at the end of 3 years. For part third we have to make some space, so I am rubbing here. So part third, total amount due. From this we have to total amount due is simple, P1 plus R upon 100 raised to power t. So amount would be, P has been given 12,800, 1 plus R is 10 upon raised to power 3. So मैंने आपको मैजिक टेबल बताया था पिछले वीडियो में, तो उसका यूज़ करेंगे हम। 10% रेट है तो क्या कितना बन जाता है, 12,800 11 upon 10 11 upon 10 11। वैसे आप मैजिक टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ये मैं चलो आपको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। 11 upon 10, सो 2 zeros कैंसल्स, 64 2 जा 5 2 जा, तो ये बन गया 11 into 11 121 into 11 1331। सो 1331 को हम करेंगे 64 से मल्टीप्लाई। सो व्हाट वुड बी आवर आंसर चिल्ड्रन? आपको शॉर्टकट मेथड्स में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो मैं जो करूँगा इसको रब करूँगा यहाँ पे, आई विल प्लेस 2 zeros हेयर। सो दिस वुड 4 1 जा 4, क्रॉस में चलेंगे, 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18, 8 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 में चलेंगे, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 1 0 0, 6 3 जा 18 प्लस 13 31,
3, सो 4 में चलेंगे हम, 4 1 जा 4, 1 0 0, 3 6 जा 18, 4 1 जा 4, 1 0 0, 3 6 जा 18, 18 plus 4, 22 plus 3, 25, so 5 will be here, 2 will carry. Now this will be left, इसको करेंगे हम, 6 1 जा 6, 6 plus 2 8, बाकी सारा 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 5 1 8 4 अपॉन 5। तो इसको करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें, 5 17, 5 जा 85, पूरा कट गया है तो 0 बचेगी और 18 रह गया, 5 3 जा 15, 4 बच गया, 34 बन गया, 5 6 जा 30 एंड 40 बन गया, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे ये आंसर आपका थर्ड आ गया। तो all the 3 parts solved. Now we will move on to the question next. This was question 4, right? Now we move on to the question 5th. What is this question 5th? He is saying this is question 5th. This is question 5th. The simple interest on a sum of money for 2 years is 12% per annum. Is this? Find the sum of the money. Now he has given simple interest on a sum of money for 2 years. So solution to 5. So जो दिया है वो लिख लो. Simple interest is equal to rupees 1380 time 2 years and rate 12% per annum, right? तो यहाँ से हमें जो है सम मिलेगा. सो प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट. सो P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टू, ये फार्मूला होता है इसका, तो आपने इसको ध्यान में रखना है. 1380 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन R इज़ 12, T इज़ 2, राइट. सो 2 6 जा 12, 2 9 जा 0, 3 4 जा एंड 3 23 जा. इसको हम आगे 4 1 जा 4, 4 25 जा. सो 25 को 230 से करेंगे, 25 0 0, 25 3 जा 75, 7 25 2 जा 50 प्लस 7 57. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सम. ये वाला आंसर हमें मिल गया पार्ट फर्स्ट का. अब हम चलेंगे सेकंड की तरफ. सेकंड में वो क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर. वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम टाइम. सो यहाँ पर P इज़ रुपीज़ 5750, रेट इज़ 12% पर एनम. अब वो कह रहा है हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का मतलब है रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 6 जा 6% हाफ ईयरली आपका ये टाइम, ये रेट हो गया. और टाइम कितना है हमारा, टाइम इज़ 2 ईयर्स. 2 ईयर्स मतलब 2 जब हाफ ईयरली में होगा तो टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 4 हाफ ईयरली, राइट. बस इसके बाद तो ये सिंपल है. फार्मूला आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P
1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस 1। फार्मूला आपने लिखना ही लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, राइट। पी कितना है हमारा 5750 अब आर कितना रह गया है 6 और अपॉन 100 और ये रह गया है 4 हाफ ईयरली। ओह सॉरी, यहाँ पर हमने 1 ईयर है, 1 ईयर पेबल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी कर गए हैं, तो आपने इसको ध्यान रखना है। टाइम इज़ 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी हाफ ईयरली बनेगा? दो हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, राइट। तो इसको भी रब करना है, आपने यहाँ पे करना है 2, तो 3 2 जा 52 जा, तो ये कितना बन गया? ये मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, इक्वल टू 5750, यहाँ पे -1 भी रहेगा हमारा, 5750, तो ये बन गया 50 बन जा 50 प्लस 3 53 अपॉन 50 माइनस 1, तो ये बन गया 5750 थोड़ा और जल्दी चल गए हम, ध्यान से इसको आपने करना है, यहाँ पे इसको ठीक करेंगे, तो ये बन गया 53 अपॉन 50 स्क्वायर माइनस 1। सो 53 इंटू 53 क्या रहेगा बच्चों? 53 इंटू 53, so 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 जा 15, 15 15 30, 3 5 5 25 plus 3 28, right? So this would come out to be 2809 upon 2500, 15 to 50 2500 minus 1. So 5750, this would 20 minus 2500 on 2500, तो ये कितना बन गया? 5750 मल्टीप्लाइड, कितने बचे इसमें से? 309 अपॉन 2500, तो इसको कर देंगे बच्चों 5 तो 5 बन जा 5 5 15 जा, और यहाँ पे आ गया 550 जा, यहाँ पे आ गया 23 5 जा, यहाँ पे आ गया 5 10 जा। तो अब 23 को 309 से करेंगे, 23 मल्टीप्लाइड 309, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 7107 अपॉन 10। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या बन जाएगा? 7110.70 rupees. This is our answer of part second, right? The compound interest on the sum ये रहेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, मैंने ऊपर का, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6
सॉरी क्वेश्चन 5 ख़त्म। तो क्वेश्चन 6 के लिए अब मुझे यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन 5 को रब करूँगा। अगर आपने अपने बेसिक्स सही रखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा वीडियो जो है फिर देखें एक बार पहले वाला। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 इज अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो दिस इज़ द पी प्रिंसिपल फॉर 2 years टाइम एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स टू रुपीज़, दिस इज अमाउंट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। हेयर P इक्वल टू ₹10,000, amount is equal to this amount is amount at the एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट ईयर के एंड में है अमाउंट 11200, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, यानी टाइम 1 year लेना। तो बच्चों इसमें हमने फाइंड करना है रेट परसेंट, राइट। तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, एक सिंपल फार्मूला याद रखना है। रेट इक्वल टू A/P 1/T -1 × 100, राइट। ये उसी हमारे फार्मूले से बना है जो हमने किया है, ये वाला A इक्वल टू यहाँ पे आ गया 100, A इक्वल टू P1 + R/T, राइट। तो ये यहीं से बना है फार्मूला। कैसे बना है ये देखिए। सो ये था A/P कर दिया पहले स्टेप में, तो ये क्या रह गया इधर 1 + R/100⁻⁷, राइट। और अगर हम इसको इधर ले जाएंगे 1 को, तो ये बन गया A/P -1 R/100⁻⁷, राइट। तो अब हमने 100 को उधर ले जाना है, तो ये बन गया A/P -1 × 100 इक्वल टू R। अब जो है एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्या पहले कि ये जो T है ये इस R की पावर भी है और 100 की पावर भी है, राइट। R ये ऐसे है R⁻T/100⁻T, राइट। तो अब हमने इसको चीज़ को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने रखना है ये R इधर, तो रेसिप्रोकल करना है, तो इस R को इधर रखते हुए P -1, तो ये R हमने यहाँ पे रखना है, 100 को उधर ले जाना है। तो इसको कर देंगे हम रेसिप्रोकल 1/T इक्वल टू × 100, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया R। तो ये फार्मूला ये डिराइव हो गया यहाँ पे। तो स्पेस बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा रब करूँगा। अब ये आपने इसको रट लेना है फार्मूला को, राइट। तो काफ़ी इजी हो जाएगा इससे आपका। R इक्वल टू
A at the end of first year 11,200. P is 10,000. टाइम इज़ 1. T यहाँ पे 1 ईयर लेना है, फर्स्ट ईयर है ना, तो A 1 ईयर, तो 1/1 -1 × 100, तो ये कितना रह गया, 1 सॉरी यहाँ पे 1 मिनट थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको, यहाँ पे ये लिखिए, तो 1/T 1/1, तो ये -1 यहाँ पे है × 100, राइट। तो अब ये क्या बन गया, 1 रह गया ऊपर, तो ये रह गया 11200/10,000 -10,000 × 100, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ये बन गया 1,200/10,000, इसमें से ये माइनस हो गया × 100, तो जो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 12%। रेट इज़ 12%, right students? So this was part first of question 6. Now part second. This was part first, अब हम करेंगे second. Part second is amount at the end of second year. ये quite easy है। अब टाइम इसमें 2 साल ले लेना अपने, रेट आपको मिल ही गया है, तो वही अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 T। सो P कितना है, 10,000, 1 + 12/100 T, राइट। तो इसको कहते हैं 100 + 12 112, 112 ये 4 0 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया 112 × 112 वुड बी 12 रुपीज़ 12,544। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। पार्ट फर्स्ट एंड 2 आर सॉल्व्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is just like question number 6. So this is like question 6. तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर द 3 year एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 year अमाउंट्स टू ₹5,600। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वैसे ही है, द इंटरेस्ट एक्रूड इन द सेकेंड ईयर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ, ये लगभग वैसा ही है। तो ये भी आपने क्वेश्चन 8 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। तो ये भी आपका होमवर्क है, आपने ये भी घर से करना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, राइट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
2000 at 10% per annum for 2.5 years. 2.5 years, right? So question 9 is find the amount and the compound interest on rupees 2000 is principal, 10% per annum is the rate, 2.5 years is time. So children, in this type of question, solution to 9, here P is equal to rupees 2000, R is equal to 10% per annum, time is equal to 1/2 years. तो इसमें हमने क्या करना है कि हमें ये हाफ ईयर्स जो दिया है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो ये हाफ ईयर्स का, जो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स, तो इसको हम अलग से निकालेंगे जो हम इसका अमाउंट फाइंड करेंगे 2 इयर्स का। तो ऐसे कर लेंगे हम टाइम को 2.5 ईयर, राइट। तो इस 2 पे पहले निकालेंगे अमाउंट, फिर अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर T। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि अमाउंट फॉर 2 इयर्स ये है, हम ये 2 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं इसको। 2001 प्लस R 10/100, तो ये मैंने आपको बताया था 2000 एंड 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11/10 इंटू 11/10। टेबल का यूज़ करके सीधा 121/100 कर सकते हैं, ये कट गया इससे। तो 11 11 जा 121, 2 जा 2420। तो दिस इज़ द अमाउंट फॉर 2 years. This amount is principal for the next half years, right? So therefore because or amount at the end of 2 years is equal to principal for next 6 months or half years और हाफ ईयर, राइट। तो ये कितना रहेगा आपका ₹2420। तो अब हमारा प्रिंसिपल ये है, ये टाइम हमारा बन गया हाफ ईयर और 6 मंथ्स। देयरफॉर P इक्वल टू ₹2420, T इज़ इक्वल टू हाफ ईयर और 6 मंथ, R सेम रहेगा 10%। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा निकलेगा अब सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT/100। P is 2420, time is half upon 100, right? This 0, this 0, this is 12. So this interest has come out to be ₹121. So this interest plus amount, so sorry, this principal plus interest would be our amount at the last of 2 years. Therefore तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ अपने यहाँ पे से। Therefore amount at the end of 2.5 years would be ₹2420 plus ₹121. This has come out to be ₹2541, right?
So this is amount at the end of 2.5 years. Now we have to find out the compound interest. Therefore compound interest would be total amount minus principal. Total amount is rupees 2541 and the principal is rupees 2000. Total amount would be rupees 541. Right students, this was question number 9. Now we will move on to the question number 10. Right, इसके लिए हमें यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी. तो so I am going to rub this. So question number 10, solution to question 10. Find the amount and the compound interest on rupees 50,000 for 1.5 years at 8% per annum. The interest being compounded semi-annually or half yearly. So this is our P, this is our T, and this is R. So P equal to rupees 50,000, T equal to 1.5 years, equal to 2 plus 1 3 upon 2 years, equal to 3 upon 2. This is semi-annually. Interest is compounded semi-annually, so we will multiply the time by 2. So 3 semi-annually, right? And R is equal to 8%. So 8R has to be divided to 4% semi-annually. राइट, तो अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, तो अमाउंट निकाल देंगे हम इस पर. P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T. P इज़ 50,000. 1 प्लस R कितना है 8 अपॉन 100 और T कितना निकाला हमने 3 सेमी. R इज 4. R इज 4 सेमी. So 4 upon 100 time is 3. 4 1 ja 4, 25. So this would be 50,000 into 25 1 ja 25, 1 is 26. Right students, 25 2 ja, so this had come out to be 25 8 ja, so 5 5 ja, 16 5 ja, so this would come out to be 26 into 26 into 26, 6 into 26 into 26. ये मैंने आपको बताया था 17576 आएगा, और इसको 16 से करेंगे तो ये हमें मिलेगा 281,216 अपॉन 5. राइट स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 6, तो 5 5 जा 5 6 2 4 3.2. So this has come out to be 5 6 2 4 3.2. So this is amount. So we have to find out, therefore compound interest A minus P. A is 5 6 2 3.2. P is what, 50,000. So this would come out to be 6243.2. So this is our second answer. Right students, so question number 10 is solved. Now we will move on to the question number next.
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इन दोनों के लिए, दोनों में सक्सेसिव ईयर्स दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर अमाउंट का रहेगा A इज़ इक्वल टू P1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 डैश डैश। कितने भी R हों तो यही फार्मूला लगेगा। ऊपर 2 है, नीचे 3 है। तो मैं आपको 3 वाला सॉल्यूशन कर देता हूँ, और जो ये है ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन 12 में क्या है, P इक्वल टू ₹17,000, T is 3 years, R1 is 10%, R2 is also 10%, R3 is 14%. So therefore amount कितना हो जाएगा, P1 फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, हम इसको सीधा करेंगे। अमाउंट P is 17,000, 1 प्लस R1 कितना है 10 अपॉन 100, R2 कितना है 1 प्लस 10 अपॉन 100 एंड R3 1 प्लस 14 अपॉन 100। तो यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, या फिर इसको आप ना भी काटें तो सीधा भी कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो करें इसको 17,000, 100 बन जा 100 प्लस 1 110 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 1 1 14 अपॉन 100। तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, इसकी 1 जीरो इससे कैंसिल हो गई, इसकी 1 जीरो इससे कैंसिल हो गई, इसकी 1 जीरो इससे कैंसिल हो गई। तो अब इसको काटने की बजाय इसको सीधा कर देना है हमने। सो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, फिर करेंगे 11 से, फिर करेंगे 114 से। सो वी विल गेट 234,498 अपॉन 10, राइट। सो यहाँ पर ये बन जाएगा ₹234,409.80, राइट। अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट इज ₹234,409.80 minus P is ₹17,000. So this would come out to be 3449.80 minus 17. So this would come out to be say ₹6449.80. So this is our question number 12. Alright students, so now we will move on to the next question, that is question number 13. What is 13 is saying? So students, this video has gone quite bigger now, about 45 minutes. We will try to solve the next 13 to 18 in the third part of it. Till then, it's goodbye. Right?
और इसको हम बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए तो वो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। राइट, क्वेश्चंस आर टिपिकल, इनको ध्यान से कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट and understood it well, then please make more like and subscriptions to our channel. Your likes are very good for us and a booster dose for us. Please make more and more likes. Thank you. Till then, it's goodbye.